morning to all of you. Myself, Amarjeet Singh, working as Assistant Professor in the Division of Forest Product and Utilization, the Faculty of Forestry. Okay. So today we are having the talk on the entrepreneurial opportunities in MAPs. So before starting the medicinal aromatic plants, I would like to say that how many of you know that how many of plants we are using day by day. In a day, you are using the plants in one way or the other way, whether you are using or not. I would like to answer you how many of plants you are using in a day. So be it breakfast, lunch, dinner, I think almost in every part of our daily life we use these Medicinal plant. Yes. It is a plant. Yes. I'm not talking about the medicinal plant, I'm talking about the plants. general plants. General plants. So there will be a number, can be a 1, 2, 3, 4. How many? Can you tell me? How many plants? Near about 1 dozen, sir. 1 dozen plants. Approx. Okay, okay. So if we talk about the person is telling us that we are using the 10 plants, the person A may increase to, he or she may increase to 15 or 10, but we can say that we are using the n number of the plants in a day. How? From morning to evening, from starting your toothpaste, that's a plant-based, from your cream, that's a plant-based, your clothes, plant-based, you are sitting on the chair, plant-based, your table, plant-based, and the n number of the plants you are taking in the food also. Whether it is a vegetables or the rice or other grains you are taking, they come from the plant. And when you are sleeping, you are taking your toilet or all other things, your bed, all comes from the plant. So we are using the n number of the plants in a day. We are directly dependent on the plants. The human beings are directly dependent on the plants for their daily needs. So there is an importance of these plants in our life. When we come to know that these plants are very much important in your life or in our life, then there should be a very good cordial relation between the we and the plants. So this is the importance of plants. You must know that we are using the n number of the plants in a day. Okay? यही से करना है इसको. हाँ सर. Now, what are the medicinal plants? What are the medicinal plants? If you go by this definition, these are used in the traditional medicinal practice since prehistoric. This is not the new that we have started this division here in Sukast, that we are now asking people to go for this medicinal plants. No, this is not new. You know the nuska of Dadi ji. You ask your ancestors that they always tell you that you are having some minor problems, you can take this medicine, you can take this as a medicine. Like कुछ भी वो बोलते थे कि भाई आपने शंगर जो है, मिलठी है या कुछ भी चीज़ जो है खांसी के लिए आपको है, तो वो छोटी मोटी दवाइयाँ जो है हम घर से शुरू करते थे. या कहीं वाउंड होता था, या कहीं पर आपको कोई दाना निकला है, या स्किन डिजीज़ है. ऑल दीज थिंग्स वर ट्रीटेड अर्लियर by themselves in their homes. So this is the traditional medicinal practice. Process possesses the secondary metabolites. What plants contain? They contain the secondary metabolites. For what purpose these secondary metabolites are in the plant? They are present for their defense purpose. Okay. These generally we have seen that these medicinal plants we generally grow
the traditional system of the medicine, we generally grow in the organic conditions, whether organic or natural conditions. We generally don't recommend any insecticide, pesticide or any fertilizer to these plants. Why? Because these are going to be used as a medicine. So they should not have the any pesticide load, any insecticide load. The plant should be free from that, but the अल्लाह ताला ने खुद इनको अपने एक डिफेंस मैकेनिज्म में एक ताकत रखी है कि आप लोग जो ये प्लांट्स हैं ये अपना डिफेंस खुद करते हैं बिकॉज ऑफ दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको दवाई लिखता है, आज का एलोपैथिक डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको वो 4 दवाइयाँ उन्होंने लिखी होती हैं। आप समझते हैं कि चारों की चारी जो मेरी डिजीज़ के लिए हैं, नहीं, एक दवाई जिसको मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, एक दवाई उसमें क्या होती है उस डिजीज़ के लिए होती है, दूसरी दवाई उन्होंने दी होती है कि आपके स्टमक समझिए म्याद चौकर उसके लिए रखी होती है, तीसरी दवाई उन्होंने रखा होता है कि एलर्जिक तो नहीं करेगा ये। तो 4 दवाइयाँ वो लिखते हैं, लेकिन एक दवाई आपका काम करेगी, सिर्फ एक दवाई, बाकी 3 जो है उन्होंने डिफेंस के लिए रखे हैं, आपकी बॉडी के डिफेंस के लिए। अब खुदा ने क्या किया है कि हर प्लांट में जब आप इसका जो हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, अभी प्रूव्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रूव नहीं किया है कि इसमें से ये फाइटोकेमिकल जो है इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम मोस्टली दवाइयाँ जो है ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या करते हैं कि काढ़ा पीते हैं। उस काढ़े में सारे डिफेंस मैकेनिज्म उसमें होते हैं कि आपको जो जुकाम के लिए है और आपका म्यादा भी जो है वो म्याद चौकने की ही, बाकी एलर्जी गैसनी की ही, वो सारे मैकेनिज्म उस काढ़े में हैं, वो डिफेंस सिस्टम सारा जो है वो उसमें डाला हुआ है। इसलिए ये दवाइयाँ जो है ये ज़्यादा के ज़्यादा असर करती हैं, उसमें आपको साइड इफ़ेक्ट वाली या दूसरी चीज़ें आपको दवाई नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन एलोपैथिक में आपको साइड इफ़ेक्ट का, एलर्जी का और 3 चीज़ों का दवाइयाँ जो है डॉक्टर आपको देता है, लेकिन इनमें ये चीज़ें नहीं हैं क्योंकि प्लांट में उन्होंने सेट करके रखा है कि भाई ये पीना है, ये खाना है, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करे। अब डेफिनेशन अगर हम मेडिसिनल प्लांट, एनी प्लांट कैन बी ए मेडिसिनल प्लांट, लेकिन कौन सा प्लांट which one or more of its parts contain the substances that can be used for what? Prophylactic and or therapeutic purposes. First is if we talk about the therapeutic purpose, means therapy. You are having the disease, you are using some medicinal plants for that to cure your disease. That is therapeutic. Then the prophylactic, if we talk about, what is this word? Preventive measures. Preventive measures. We are not asking you to, somebody is having this disease, you take this medicine. You take these medicinal plants to cure the disease. To curing the disease is different. To preventing the disease is very, very different. So we generally recommend people to not cure the disease, to prevent the disease. You have seen during the COVID time, the people generally take the kahwas. What was that? That was not the treatment of your COVID-19. That was not antiviral. But that was to prevent the disease. How to prevent the disease? You have to build your immune system. When your immune system is rich, when your immune system is healthy, then any disease cannot attack you. So this is not necessary that you will ask me the question, sir, इतनी बड़ी डिजीज है, किसको कैंसर हो गया, कैसे उसका मेडिसिनल प्लांट आप दे रहे हो, नहीं हो रहा है ठीक, किसी को कोई हाइपरटेंशन की है, नहीं हो रहा है ठीक, किसी को दूसरी प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है आपकी दवाइयों से ठीक। भाई आपको प्रिवेंशन के लिए अपने इम्यून सिस्टम को आपको डेवलप करना है। आप देखिए कोविड ने बहुत सारी कंट्रीज को ज़्यादा लॉस किया है, इंडिया को कम लॉस किया है। कुछ कंट्री, पाकिस्तान को हमारे से कम, कि उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा डेवलप था पीपल्स का। ठीक है जी। अब हम जब पानी पीने शुरू कर देंगे बोतल का और फूड खाएंगे कुछ ऐसी, तो हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल
कमज़ोर होगा। तो हमें कोई भी डिजीज़, आप देखिए शहर के किसी भी बंदे को बोलिए टैप वाटर पिएगा, दूसरे दिन वो बीमार होगा, यार क्या पिला दिया इसने, गंदा पानी है। लेकिन मेरा गांव वाला वही पीता है, उसने अपना सिस्टम जो है वो डेवलप किया हुआ है, इम्यून सिस्टम उसका डेवलप्ड है। अब आप बोलोगे कि भाई मैंने अपना इम्यून सिस्टम एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा के पूरा ख़त्म किया हुआ है, और जो बंदा आयुर्वेदिक दवाई खाता है वो बोलता है मैं तो ठीक हो रहा हूँ इससे। आपको अपनी बॉडी को डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ दीज मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। एंड अनदर पर्पस इज प्रीकर्सर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ यूजफुल ड्रग्स। ये मेडिसिनल प्लांट्स, प्रीकर्सर क्या होता है? व्हाट इज प्रीकर्सर? बिफोर कमिंग, प्री, okay, before you are going to develop this drug, this will show you that they are having some quality. Some plants will show you that these phytochemicals are having this quality to inhibit the growth of some diseases or some like that, okay. So this is the definition of your medicinal plant. Why medicinal plants are important? Because of these reasons the medicinal plants are important. Traditional system of remedies. You don't need some sophisticated resource persons to tell you that this plant is used for this. Everybody, some general knowledge you are having, the people will tell you that this plant is used for this purpose. So this is the importance of this system, why medicinal plants are important. These are used in the modern drugs. The modern drugs can be area where you can go that this, why these medicinal plants are. Then the nutraceutical, you know what is nutraceutical? आजकल people, they are very fond of what they are not taking this rice. Now they are going for the ragi, bajra. All these are these are the plants which are being used by these people. बहुत पुराने लोग खाते थे ये, और हुआ क्या ये कि हम लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कि मुझे याद है कि रागी और बाजरा की जो रोटी है ना, कश्मीर में भी चलती थी, और जब चावल आया तो लोग क्या करते थे, और चपाती छुप के खाते थे लोग। जो गरीब था ना, वो रागी और बाजरा की रोटी छुप के खाता था कि मुझे ना देख ले लोग कि मेरे पास चावल नहीं है, ठीक है, ताकि मैं सोसाइटी में मुझे छोटा ना माना जाए। और हुआ क्या कि आज अब रागी और जो बाजरा है वो आपको बड़े हाई क्लास डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिलेगी। अब आपको खरीदना है वो, अब आपकी परचेजिंग पावर उतनी नहीं है कि यू कैन बाय दैट। राइस इज वेरी मच अवेलेबल ऑन सब्सिडी। स्टोर्स पे पंजाब से लाद के आ रही है गाड़ियाँ, ट्रेन अब आ रही हैं, और आप राइस जितना मर्जी खाओ। बीमार बोलते हैं शुगर हो गया जी मुझे। लोगों ने अब क्यों कहा कि भाई वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वही फूड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे शुगर नहीं होता, फैट कंटेंट कम है। तो दीज आर द रीजंस कि आपको वो क्रॉप लेने वापस जब आप जाओगे, जिस चीज़ को आप छोड़ दोगे और आप उसकी तरफ जब वापसी पे आओगे ना कि वापस हम वही खाएंगे, यू कैनॉट अफोर्ड, वन कैनॉट अफोर्ड, ठीक है जी। हमारे घरों में बुखारियाँ जलती थीं फ्यूल वुड की, और उसके बाद ये बला आ गई सिलेंडर। नाउ यू कैन अफोर्ड द सिलेंडर बट यू कैन नॉट अफोर्ड द 1 क्विंटल ऑफ द फ्यूल वुड। हमारे बुजुर्ग लगाते थे पेड़, हमारे घर में अपना फ्यूल वुड होता था और अफोर्ड आराम से हो जाता था, चूल्हा भी जगता था, गर्मी के लिए भी जगता थे, सब कुछ होता था। लेकिन हमने अब हमारे लिए यही सस्ता है, सिलेंडर 900-800 रुपीज़ का मिल जाता है, लेकिन ज़्यूना छुद्रोग वी कैन नॉट अफोर्ड। सेकेंड थिंग, हमने अपनी कंस्ट्रक्शंस को सीमेंटेड किया, चाहे मार्बल लगाया, टाइल लगाई, हमने सीमेंटेड किया। और अमीर लोग जो है सीमेंट को छोड़ के कहाँ आ गए? मड पे, मड से आ गए पैनलिंग पे। हमारे पुराने घरों में देखो पैनलिंग हुई थी, लकड़ी लगी होती थी,
बहुत ज़्यादा लकड़ी लगी थी, लेकिन हमें बोला भाई हम गरीब माने जाएंगे भाई, हम जब तक मार्बल नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम अगर लकड़ी लगाएंगे वी कैनॉट। द सेम वाई आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, द सेम इज द रीज़न विद दीज मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। हम घर में खाते पीते थे, पत्ते चाय पीते थे, दूसरी चीज़ें करते थे, लेकिन जब आप वापस आओगे, आजकल लोगों ने क्या किया है, आप किसी हाई फाई के घर में जाओ, दे विल नॉट ऑफर यू द लिप्टन टी या आपको नून चाय, दे विल नॉट ऑफर यू, दे विल ऑफर यू द ग्रीन टी, ब्लैक टी। वो अपने स्टैंडर्ड, वो क्यों चलेंगे हमारे साथ? लिप्टन चाय तो हमारे गरीबों के घर में वफूत है, नून चाय भी वफूत है, ठीक है ना। वो अब हमसे अलग होना चाहते हैं ना, वो कैसे डिफरेंट दिखेंगे? वो डिफरेंट दिखते हैं बिकॉज ऑफ दीज लेवल्स, कि भाई वहाँ तो यार ग्रीन टी चलती है, तो वो ग्रीन टी हम पीते थे, या मोगल चाय इस मानो दूध वाला इस, मगर इस खटित चा माने से तपर है इमो वाइना निमन शुरू दूध ही, ठीक है, ऐसे मोगल चाय चावन खटित वी कैन सिटिम दपन सामने रख के आई एम टेकिंग ग्रीन टी, ठीक है। शुगर नहीं खाएंगे, स्टीविया खाएंगे। स्टीविया एक प्लांट है that gives you the sugary taste, they will take this, but the कहने का मतलब है कि we cannot come back। जो चीज़ हमने छोड़ी, the day will not be far away that we are now purchasing the water। किसी ने सोचा था 10 साल पहले कि मैं पानी, आज हम श्रीनगर में सिर्फ पानी खरीद के पीते हैं, अभी यहाँ पर लोग बोलेंगे पागल से गए। ठीक है, अब हर स्टोर में पानी बिकता है, ठीक है। गाय, दूध, ये सब गरीबों का खेल था। अपने घर में गाय रखी थी, हमने छोड़ दी, गाय हमने छोड़ दी। दूध अब हमें पैकेट में आ रहा है, क्या आ रहा है वी डोंट नो, सिर्फ सफेद है, इट्स अ वाइट, वी कंसीडर द वाइट एज अ मिल्क। गाय रखनी अब गरीबों का बस की बात नहीं है। गाय रखेगा वो जिसने आदमी रखना है, पहले 10,000 का उसके साथ जो डील करेगा, फिर उसने उसके लिए चारा लाना है। तो गरीब कहाँ, वो तो अमीर रखेगा, वो बोलेगा कि अब मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मुझे अपना दूध चाहिए, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं फूड प्योर खाऊंगा, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, पैसा तो मेरे पास बहुत हो गया, अब भत्त भरने की जरूरत नहीं है पेट में, एनफ राइस इज देयर, enough things are there, now the people are very much health conscious। अब वो 2 घंटे जिम में भी जाता है मॉर्निंग में, ठीक है, और खाता भी सिलेक्टिव है, तो वो क्यों लेगा आपकी एलोपैथिक दवाई? he knows better that these drugs are having the side effects। I cannot, I have to go for the natural things, ठीक है। तो he or she can afford these type of the medicines in the coming years, you will see, but we people cannot। You have seen that in the Srinagar departments, departmental stores, you check your departmental store, cash and carry and pick and choose, these are some bigger athwas, there you can find the green tea, you can find the rosemary tea there, वहाँ बिकती है rosemary tea for those people which are having the standard, जो पहुंच गए हैं कि भाई हमने रोजमेरी खरीद के पीनी है। लिप्टन टी दे आर नॉट परचेजिंग, और माइट बी परचेजिंग सम लिटिल बिट, बट वो हमसे डिफरेंट लगनी चाहिए ना, ठीक है। हमने गोल्ड पहना, उन्होंने गोल्ड छोड़ दिया, जब हम वहाँ गोल्ड तक पहुँचे, अब तो जाने खाने ने शादी में गोल्ड पहना है, वो नहीं पहनते, वो बोले भाई अब ये लानत कुछ लाग, इससे तो ये लोड ही दिखता है, ठीक है। तो वाइट गोल्ड की तरफ चले गए, उसके बाद उन्होंने आप वो भी छोड़ दिया, भाई ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। तो आपको जितना भी मटेरियल आप छोड़ोगे, आपको वापस आना उस पर नहीं है। आज आपको लगेगा कि मेडिसिनल प्लांट यार ये बकवास है, अभी कौन खाता है, कौन डिजीज़ के लिए खाएगा, कौन किसी के लिए किसी चीज़ के लिए खाएगा, नहीं, द पीपल विल कम एंड द पीपल आर प्रेफरिंग दीज टाइप ऑफ द मेडिसिन। इन द ब्यूटी cosmetics, you can see that you ask these girls if they are going for the beauty parlor, she will ask her that you are going for the natural or synthetic. The synthetic is having the price less,
as compared to the natural. The natural is having the price, high price. The same thing is that you are having the natural, the organic food and the inorganic food. What we have done, no doubt, so Swaminathan ji has done a great work by bringing the green revolution in India. At that time, there was a scarcity of the food. At that time, there was a garibi, too much of the garibi in India. They used this fertilizer for the production purpose. They used the fertilizers for the production purpose. Everybody started fertilizer application to their fields. Everybody started. But we are having some greedy nature. We are having some greedy nature. मुझे लग रहा है कि अगर हमें डॉक्टर नहीं बोलेगा ना कि एक टेबलेट खाना, कश्मीरी हम ज़्यादा ग्रीडी हैं, तो मुझे लग रहा है हम बोलते हैं कि दूसरे दिन खड़े हो जाने चाहिए, हम 2-3 खा लेंगे. द सेम थिंग हैपन टू दिस पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स. जो रिकमेंड किया था उस वक्त की रिपोर्ट जब आई थी, रिकमेंड किया था कि इतना नाइट्रोजन आपके पर हेक्टेयर में, आप कभी डॉक्यूमेंट देख लेना कि रिकमेंड क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन में, नाइट्रोजन कितना देना है आपने. एंड टाइम टू टाइम यू हैव टू चेक द स्टेटस ऑफ द सॉइल. वो तो हमने कभी किया नहीं. वी डोंट. हमने ना स्टेटस ऑफ द सॉइल किया चेक. हमने क्या किया कि हमारा फार्मर खाद भूरी छकित भूरी बम्पर क्रॉप आ गए. दवाइयां छिड़कनी है तो एप्पल में 15-16 छिड़को, कुछ नहीं आना चाहिए, दाग कुछ नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो वही हमने क्या कर दिया. और लोग क्या कर रहे हैं अब हम लोगों ने खाद छिड़कना शुरू किया. लोग आ गए नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब आपका जो अमीर आदमी है, जो टाटा वाले हैं, जो इनकी बहुत बड़ी बात करो या इनकी अपना अंबानी ये हैं, आप क्या सोचते हैं ये वाली ये या चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब पहले था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसकी सब्जी हिमाचल के पहाड़ों से आती थी. कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक फार्म है हिमाचल में, वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और डेली सब्जी जो है एक दो दिन के बाद सब्जी जो है वो उनको खाने के लिए आती है. आज हर सिटी में आपको, हर डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको मिलेगा ऑर्गेनिक दाल. आप दालों में चले जाओ, आप उसको पूछो भाई ऑर्गेनिक कहाँ है, वो यहाँ जी यहाँ रखी हुई. प्राइस हाई, और अल्लाह ताला ही जानता है कि वो है भी कि नहीं है. भर दिया पैकेट में, लेकिन जो खुद करते हैं बोलते हैं भाई हम नेचुरल फार्मिंग करें. यही नेचुरल फार्मिंग तो हम कर रहे थे भाई. ऐसे गरपा होस गए, ऐसे गरपा त्रावन तथ जमीनस, ऐसे वबदावन सु साइंटिस्ट वन दपन है खाद त्रो होकुन नेचुरल कुन गु या ऑर्गेनिक कुन गु, अत मिल 4 पोस, अख मिल पोस, बेत ज्यादा मेहनत की, ज्यादा मेहनत की बात नहीं है, और ज्यादा आपको डिजीज भी नहीं आएंगी. लेकिन हम चले गए खाद. अब खाद मेरी सस्ती है, गोबर नहीं है. एनिमल पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग. मैंने जब गाय बच्चे घर में रखे थे, वो मैंने खलास, मैं बन गया शहर का बाबू. ठीक है भाई, मैं आज पेंट ला दूं ना, क्या कर दूं. ठीक है, उस फार्मर को घर से निकलता था FIM. वो सिर्फ FIM सिर्फ नाइट्रोजन की प्रभुति नहीं कर रहा था. FIM आपकी सॉइल की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी मेंटेन करता था. आज आप देखोगे, आप पंजाब की हालत देखो, फर्टिलाइजर से सॉइल की जो है वो कंपैक्ट सॉइल हो गई है, वो सुचबैनमुशिस्तर, और इतना ज़्यादा केमिकल्स. आपकी कैंसर ट्रेन का नाम रखा गया, जो बठिंडा से चलती है ट्रेन, उसको कैंसर ट्रेन रखा गया नाम. आप कश्मीर में देखिए नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं कैंसर की. वाई? because of our style of agriculture, because of our style of food, all these things. You have to be very conscious. You have to tell the people that why I am asking you this, why the importance of medicinal plant is there. Okay, आज आप छोटा मोटा ये जो बिजनेस है, आप
सोनमर्ग में एक नेचुरल एक छोटा सा आउटलेट खोलिए जहाँ आप लेवेंडर चाय, रोजमेरी चाय, आप देखो कितने, हाउ मनी पीपल विल कम टू यू। ठीक है, तो ये एक टाइप है बिजनेस का कि आपने कैसे अपने बिजनेस को आपने प्रोड्यूस करना है। मैंने कल भी आपको एक बात बोली कि आपकी जो आप प्लेट में रखते हो, आप कैसे रखते हो, दैट प्लेटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो आप कैसे लोगों को कन्विंस करोगे कि आप मेरी चाय क्यों पियोगे। आपके पास लिप्टन चाय भी है, आप मेरी ग्रीन टी क्यों पियोगे। What are the benefits of health benefits? आपके मेनू में प्राइस जो है that should be a last option कि ये प्राइस जो है इसकी 50 रुपीज़ है, लेकिन आपके टी के साथ आप लिखा है ग्रीन टी, रोजमेरी टी, उसके साथ आपको अगर छोटा सा बॉक्स लगा है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, आपका मेनू वैसा होना चाहिए। ठीक है, आप जिस बिजनेस में भी जाना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, आप टारगेट क्या है आपका। मैंने पहले आपकी बात वो करते हैं, चाय भी पीजिए, कोई बात नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है, आप चाय भी पीजिए साथ साथ में। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैंने आपको बोला कि भाई कि अब मार्केट जो है ऑर्गेनिक की तरफ चला गया, नेचुरल की तरफ चला गया है, जा रहा है, लेकिन वी कैन नॉट एफोर्ड, वन कैन नॉट एफोर्ड। आप अभी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए, नेचुरल थिंग्स या आपकी जो दालें जो ऑर्गेनिक हैं वो ज़्यादा महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। इसी पे एक स्टोरी मुझे सुनाई थी, दिल्ली में एक मियाँ बीवी डेली आते थे, IARI के बाहर एक शॉप थी, वेजिटेबल शॉप, तो वो डेली आते थे, वो मिडिल मतलब नियर अबाउट 50s के क्रॉस थे, वो रिटायर्ड थे, वो दे वर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स बोथ कपल। तो वो सब्जी वाले के पास आते थे, तो एक ठेला सब्जी वाला उनको सब्जी का देता था। क्या देते थे वो कि भाई जिस बैंगन में कीड़ा लगा है, जिस लौकी में कीड़ा लगा है, जिस करेले में कीड़ा लगा है, या कोई आपको कलरलेस है, तो वो उस थैले में डाल के रखते थे और वो आते थे और वो ले जाते थे। एक बंदे ने बड़ा क्यूरियस रहा उसका कि भाई ये क्यों ले जाते हैं ये खराब कीड़े वाली सब्जी। तो क्योंकि हमारा क्या रुझान रहता है कि हमारा ये रहता है कि हम मोस्टली जब हम सब्जी वाले के पास जाएंगे तो हम कहेंगे कि यार हमें तो साफ चाहिए सब्जी, ठीक है जी, साफ और ग्रीन जो हमारे इन आँखों को भावे। भिंडी जाओगे तो ग्रीन भिंडी जहाँ पर मिलेगी तो वो खरीदोगे आप, उसमें कलर, करेले में ग्रीन करेला है तो वो कलर है। और मोस्टली रहता है कि हमारी जब लेडीज़ जाएंगे या हम जाएंगे, हम वो बैंगन नहीं ले गए यथाचक्युम क्युम, ठीक है, वो वाला नहीं ले गए, वो लेते थे। उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों लेते हो, आप ये आपने क्या घर में कोई जानवर रखा है, गाय रखी है या कुछ रखा है जिसके लिए आप ये खराब सब्जी लेते हो। तो उन्होंने बोला नहीं, द इंसेक्ट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ दैट फ्रूट और दैट वेजिटेबल दैट द पेस्टिसाइड लोड इज वेरी मच लेस। आप नहीं बता सकते अभी कि बैंगन, जो बैंगन बिल्कुल साफ शफाफ है, दैट मीन्स उसके ऊपर पेस्टिसाइड अच्छी खासी की गई है, इसलिए कीड़े ने उसको खाया नहीं, कीड़ा उससे हट गया। हम तभी तो करते हैं, हम सेब में क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि इसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो जितना साफ सेब है उतना समझ लो क्या है, हाँ धोया है फंजीसाइड से, ठीक है, उतना लोड ज़्यादा होगा। तो सेम इज द केस विद दीज वेजिटेबल्स। और वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, दे वर नोइंग दैट व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। और वो लोग वो वाला फ्रूट वाला खाते थे जिसमें कीड़ा लगा, बोला इसमें क्या है, बैंगन का वो छोटा सा हिस्सा काट के साइड को कर दो, 99% आपका बैंगन जो है दैट इज ओके, ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ें जो थी वो इम्पॉर्टेंट क्या है कि एंटरप्रेन्योर को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करने के लिए योर नेम, व्हाट द नेम यू आर सजेस्टिंग द प्रोडक्ट, योर ब्रांडिंग, आप उसकी ब्रांडिंग कैसे करते हो, योर पैकेजिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कल भी मैंने आपको बोला कि भाई वो टाटा वालों ने जब नैनो बनाई तो उसका नाम जो है वो रख दिया पुअर मैन्स कार, जैसे हमने रखा है पुअर मैन्स टिम्बर, किसको बोलते हैं हम, बैम्बू, ठीक है। तो
नैनो जब फेल हुई तो नैनो का फेलियर का एक ही कारण था, प्राइस बहुत अच्छी थी, पुअर मैन्स कार। मुझे कोई बोल दे कि भाई दिस इज अ पुअर मैन्स जैकेट, आई विल नॉट बाय, क्योंकि मुझे तो अपना स्टेटस डाउन हो जाएगा ना। अगर मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं बोलूंगा दूसरी चीज खरीदूंगा, ये नहीं खरीदूंगा भाई, सारे बोलेंगे ये पुअर मैन है। ठीक है, ऐसे में पुअर हूं, छुपा लूंगा, लेकिन ऐसे में नहीं लूंगा। नैनो नहीं ली मैंने, मैं बोला दूसरी कोई कार ले लूंगा, नैनो नहीं लूंगा। लोग तो सरेआम पड़ रहे, ये दिस इज अ पुअर मैन्स कार। जिनके पास पैसा था वो भी हिचकिचाए कि नहीं लेंगे, जिनके पास नहीं था वो भी। The Nano's failure is, behind the story is that the Nano's name, that this is a poor man's car. तो आपकी जो चाय आप कल कोई सोनमर्ग में, मोस्टली ये गांधरबल के हैं, तो अगर आप छोटा सा आउटलेट खोलते हो तो आप बोलोगे भाई यार दिस इज द पुअर मैन्स टी, नहीं चले। ठीक है, फिर आपका टारगेट कौन है? कोई भी प्रोडक्ट की तरफ आप जाते हो, हु आर योर टारगेट्स? अगर आप लिपस्टिक बनाते हो, नेचुरल लिपस्टिक बनाते हो, और आप ये टारगेट, ये एग्जांपल मैं देता हूं, और आप टारगेट बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है आपको कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो आपने अपने फाइनेंशियल टारगेट्स के साथ 140 करोड़ के टारगेट बना दिया। यू आर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ? क्यों? क्योंकि 140 करोड़ जो है लिपस्टिक नहीं लगाता भाई, 70 करोड़ लगाएगा। 70 करोड़ में से भी बच्चियां निकाल दो, जो 12th तक है वो तो नहीं लगाएंगी, उसके बाद ना ही बुजुर्ग लगाएंगी। वहां क्या बचता है? आपका मार्केट कितना है? बस सिर्फ 20 से लेकर 40 तक। वो मार्केट आपको पता होनी चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं मेरा टारगेट कितना है। दिस इज फाइनेंस, दिस इज द मैनेजमेंट, कि आप जब कोई भी चीज को टारगेट करते हो तो आपको पता होना चाहिए मेरा मार्केट कितना है। आपने गलत नोशन नहीं लेना है कि भाई मेरा मार्केट ये है। आप बच्चों के डायपर बनाते हो तो आपको पता होनी चाहिए कि डायपर किस एज से किस एज तक लगाया जाता है ओनली। ठीक है, तो ये आपको दिमाग, ये एग्जांपल्स इसलिए मैं देता हूं कि आपका थोड़ा बहुत ये लगेगा कि भाई हम अगर बिजनेस में आना चाहते हैं, अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो तो मिल जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग आने चाहिए। आज आपको पता है द सिचुएशन क्या है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में। अभी हम कश्मीर वाले जो है ना 5-7 साल 10 साल पीछे चले होते हैं। आज सिचुएशन ये है कि अगर मैं अपनी दे देता हूँ आपको, अगर मैं अभी रिश्ता ढूंढने जाऊँ ना कि मुझे शादी करनी है, और मैं ये बोलूँ कि मैं गवर्नमेंट सर्विस हूँ, कोई नहीं देता। उल्टा हो गया, अब गवर्नमेंट सर्विस वाले को नहीं मिलती है। जो लड़कियां कॉर्पोरेट में काम करती हैं देर, वो बोलती हैं कि इसको कौन देगा भाई, ये 10 to 4 वाला मुलाजिम को कोई नहीं, मैं तो नहीं करूंगी इनके साथ। अब कॉर्पोरेट में काम करने वाले का ग्लैमर बहुत है। अब उसका ग्लैमर है, पहले जो किसका ग्लैमर था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का माना जाता है अब वर्स्ट। अब जो है, जो कैलिबर जिसमें होगा, he or she can work in the corporate sector. अभी हम थोड़े कश्मीर वाले जो है ना अभी भी बोलते हैं नौकरी छसा सोचते द मुदहन शासन नजी। ठीक है, गवर्नमेंट मुलाजिम छा या लुट रही था, लुटा वो तो भी खाता कोई तिस्कालस। अब शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है मुलाजिम के ऊपर कि भाई आपने पैसे को क्या किया, कैसे यूटिलाइज किया। वो पुराना ज़माना चला गया। अब ग्लैमर जो है वो कॉर्पोरेट वाले का है कि जो कॉर्पोरेट में लड़का लड़की काम करता है, द पीपल प्रेफर दोस। समझे? अब हमारे कश्मीर में ट्रेडिशन था बड़े मकान बनाने का, सारी मतलब जितनी अपनी कमाई, जितना झूठ सच करके मकान बनाना है भाई। ये कर तुम मकान बनावन अख पोर बे गो जो पोर आसन त्रेम थोस हाल कुन सा मारुन। ठीक है, मारुन जुन बे थो हाल, तथ हालस कारपेट त्राउन रपन 5 लक्षन, तक अके साथ गन मर कह। ठीक है ना, तो 10 लाख रुपया ब्लॉक कर दिया ऊपर, 50 लाख का छत कर दिया, हाल बनाते बनाते 50 लाख रुपया हमने खर्च कर दिया। जिंदगी में 3 बार उस हाल में घुसे।
तो लग गए हैं हम उस साइड, नोशन ऐसा बन गया हुआ है, अगर नहीं मकान शी नथिंग। लेकिन अगर ये ऐश कर रहा है, ये घूम रहा है, इसकी ज़रूरत जो है वो ओनली 3 रूम्स स्टोरी, इसको ज़रूरत है ज़िंदगी की, उसके पीछे नहीं कोई। आप लोग पढ़े लिखे हो, उसके आपको वो सोचना है कि ये मकान वगैरह ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये इसके डेप्रिसिएशन है। जिस दिन आपने बना दिया है, यू विल स्टार्ट द डेप्रिसिएशन। आप इसको दूसरे दिन बेचोगे, यू विल नॉट फाइंड एनी, नहीं। लैंड इज हैविंग द वैल्यू, मकान में कोई ये नहीं है। और हर किसी ने मकान बनाना है। आपने बनाया मकान, आप मत सोचो कि मेरे बेटे ने भी बनाना है। ऐसे चेंज हो रहा है, इतना फास्ट चल रही है जिंदगी कि आपका किचन 10 साल में जो है वो ओल्ड होता है। इतनी फास्ट लाइफ है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो आप क्यों सोचोगे मैंने अपने बेटे के लिए भी इतनी ये करनी है? वो भी लगे हैं हम वेस्टर्न कंट्री में, तो नहीं सोचते वो मैंने अपने बेटे के लिए भी जायदाद गसस आसिम पास सिंतर से त्राठी सिगरेट चाहिए सिंसु किनित सॉरी चारस दादमत सिंसु किनित सॉरी। मगर हमने अपने आप को क्या किया है, एक जेल में डाल दिया है, इस जिंदगी को जी नहीं रहे हैं। हमने फंसाया हुआ है इतने सोशल उसमें कि हम जिंदगी को जी नहीं पा रहे। हम कभी निकलते नहीं हैं कि भाई हम बाहर कोई जगह देखें, लोग देखें कैसे लगे हुए हैं वानदस्ती मकान बनाना, और गर्मियों में भी लगे हुए हैं, आज तो पैनलिंग करें, आज हम ये करें, आज हम ये करें, बस इसी में फंसे हुए हैं। ठीक है। अब आपका जो एडवर्टाइजमेंट, देखिए एडवर्टाइजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। अब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, मैं कई बार इन क्लासेस में बोलता हूँ इनको कि ये जानते हैं, ये अपना इकरा वगैरह, ये कि कोक कंपनी है, ठीक है जी। अब कोक ने अपना कलर चूज किया रेड एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। वाई रेड? हाँ चलो जी, एक बात हो गई दूर से दिखनी। दूसरा रेड होता है मतलब डेंजर। ये हर किसी की बात की ये बात नहीं है पीना, ठीक है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है। ये वही पिएंगे जिनमें दम होगा। ये इसकी स्टोरी है, आपको गूगल कीजिए, आजकल आपको पता चल जाएगा। ये लोग जो हैं जब किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपको मुंबई में एक एडवर्टाइजमेंट कंपनीज अलग है, वो आपको एडवर्टाइजमेंट देंगी और आइडिया देंगे कि भाई आपके प्रोडक्ट का कैसा होगा। फिर एडवर्टाइजमेंट में क्या है कि भाई यंग बॉय 13 ईयर्स 12 ईयर्स यंग बॉय, अब वो क्या करते हैं कि भाई जितना नीचे लाते हैं, 9 ईयर्स और बॉय कॉलेज के बाहर कोक पी रहा है। व्हाट डज इट मीन? ही वॉन्ट्स टू शो दैट आई एम नॉट ए चाइल्ड नाउ, मैं यंग हूं, मैच्योर हूं, मैं एनफ मैच्योर हूं, मैं कोक पीता हूं, दूध की बोतल नहीं। जब बच्चा थोड़ा सा अपने घर में भी बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब वो कोक पीना शुरू करे ना, ही वॉन्ट्स टू शो दिस सोसाइटी दैट आई एम यंग नाउ। अब बाप से मैं एडवाइस नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो कोक कंपनी छोटे लड़कों को वो करती है कि भाई आप एडवर्टाइजमेंट में छोटा लड़का होता है उसका कोक पीता। अब कोक कहाँ पर पीनी है उसने? माँ की लैब में तो नहीं बैठ के पिएगा ना कि मैं वहाँ वो जचता है दूध की बोतल पीते हुए। उसको दिखाते हैं कॉलेज के बाहर, हायर सेकेंडरी के बाहर, गर्ल्स हायर सेकेंडरी के बाहर दिखाते हैं उसको, कॉलेज के बाहर दिखाते हैं कोक पीते हुए, क्योंकि वो सोसाइटी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है ना। जब पहले मुच्छें आती हैं तो बड़ा सजा के रखता है बंदा उनको, यार अब बुगोज बोर्ड, ठीक है। तो आप सोसाइटी को ज़्यादा दिखाना चाहते हो। ये कंपनियां इतना पैसा खर्च करती हैं एडवर्टाइजमेंट पे, क्योंकि हर थीम इनका लेते हैं, ये थीम लेते हैं कि भाई आप उसी तरह से आपकी जो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी प्रोडक्ट की, या उसकी ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, उसकी एडवर्टाइजमेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट है, तब आप किसी बिजनेस में जा सकते हैं। ये डाटा है, about 2,500 plant species are used in all the codified system of medicines, and these much of the species in Ayurveda, Siddha, Unani, Soarikpa, homeopathic, and Soarikpa कहाँ पे है, कहाँ की है, which कोई कुछ पता है? तिब्बतियन,
Tibetan system of medicine. Okay, so these are the species which you can find that how much still we are using the most number of the species are used in Siddha and Ayurveda and Siddha. Ayurveda and Siddha में, ठीक है? So these data change continuously. Sir, any examples from nutraceuticals, sir? न्यूट्रास्यूटिकल एग्जाम्पल्स जो हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल में आपको आजकल क्या है कि आपको हर्बल चॉकलेट्स या आटा, आप देखो रामदेव जो है वो बोलता है कि ये ये आटा मेरा जो है ये नेचुरल आटा है या दूसरे न्यूट्रिशनल इसमें ये चीज़ें डाली गई हैं, तो दैट दोज प्रोडक्ट्स यू कैन, दिस इज़ द इनोवेशंस, जैसे आप कुछ चीज़ों को मिला के यू कैन मेक द न्यूट्रास्यूटिकल्स. So how can we differentiate those nutraceuticals from the functional foods, kinda? Because functional foods are almost The same. yes, sir. Same functional foods also say that these are these. Yes, right. The nutraceuticals, we generally the herbal chocolates we say that this is having the nutritional value of this much. जो आप चॉकलेट खाते हो तो you are having the Cadbury की चॉकलेट and some herbal chocolates and herbal toffees. तो मैं आगे भी दिखाऊंगा अगर उसमें इसमें वो स्लाइड हुई तो न्यूट्रास्यूटिकल का एक एग्जांपल मैं दूंगा. So these we say that the number of the 90% of these species are coming from the forests, and only the 10% of species are cultivated. Okay, now the question arises here that if the 90% of the forests, 242 plant species records high annual trade, forest 140, in which the Himalayan forests produce the 36 species and the tropical 78 species. Wastelands we are having the 59 species, cultivation 54 species and imports 15 species. All that comes that 72% of the species are in high demand, continue to be sourced from the wild. When you see this 114 and this all these things, it will come about the 72%, and only 22% are from the cultivated sources. Why? Here the question arises that why this very much less, even less than 22% are cultivated. All the materials are coming from the forest or the wild, and the only few species which are being cultivated in India. Okay, the few species which are being cultivated in India, and the first, which one is the largest? In India, which species is cultivated largest? Area under cultivation in medicinal plants is which one? Tell me this, Ikra. Which species? Which plant species? Isabgol. Plantago. Okay, because the Plantago is having the export market. You know, the Plantago husk as well as the Plantago seed is sold in the market, and it is having the very much high demand in the Western countries, because those Western countries are very much habitual in taking these pizza and all the junk foods. They are having one problem, that is the constipation. They are having the problem. You can use, to avoid the constipation, you can use the allopathic medicine like Picillin is available, or some loose. These are the type of the medicine which are available in the market. But once you take those medicines on a regular basis, you will become the habitual of that. They are having the side effects. What the Western people have seen, that the Indians are using this Isabgol as a laxative because it is having the capacity to store the water, absorb the water. It stores the water in our stomach, and that's water. When the water content increases in your body, your stool will become the loose. It will not harden. So this is the reason behind that why we are using this, because it absorbs the water. You put the 1/2 spoon of this Isabgol in your glass of water. By morning, you will see that it's a full of it has absorbed all the water from your. Sir, is it same Glass. which we call as that Babrigio? No. Isabgol name itself is available in medical shops. You ask them the Isabgol,
you will find the different packages of Isabgol. You said that's also having the same properties which we use in the whole. Yes, that is having the, you are right, but we cannot say that the Babrbiol is having, whether there is, it is somewhat laxative also. Yes. Which one? This Isabgol. So they, Western people generally take this because why? They are health conscious. They don't prefer the pickling and loose. Because of side effects, they don't prefer. But taking the plant material regularly, it as a food, you can take that. You are taking this as a regularly plant husk, it will not cause you any problem as a side effect. आपको side effect भी नहीं होगा, और अगर आपको खाना भी पड़े डेली तो there is no problem. जैसे हम हाक खाते हैं डेली, ऐसे हम इसबगोल खाएंगे, what will happen? Nothing will happen. ठीक है, लेकिन आप वो एलोपैथिक अगर आपका खाना शुरू हो गया, वो नहीं आपको छूटेगा. ठीक है, तो इसलिए इसकी मार्केट वहां ज्यादा है. और एक चीज की मार्केट वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, जो भूलने वाली बीमारी है उनमें ज्यादा है. क्या बोलते हैं उसको? अल्जाइमर. ओके, अल्जाइमर डिजीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो वहां पर ज्यादा है. क्या उनके 50 साल का बंदा भी भूल जाता है. उन्होंने क्या किया काम के भाई, रिसर्च जब हुआ तो एशियन कंट्रीज में अल्जाइमर डिजीज इज वेरी मच लेस बिकॉज ऑफ कर्क्यूमिन. वी आर टेकिंग द हल्दी. वो हम हल्दी खाते हैं, सब्जियों में डालते हैं, मीट में डालते हैं, किसी भी चीज में हमारे इंटेक है कर्क्यूमिन की इन द फॉर्म ऑफ कर्क्यूमिन. बट दोज पीपल आर नॉट टेकिंग दिस. मसाले वैसे नहीं डालते वो, हम जैसे तड़का लगाते हैं, हम जैसे हल्दी मिर्ची डालते हैं वो नहीं. दे आर हैविंग द सॉसेस मोस्टली. उनके पास सॉसेस हैं, वो नहीं मिलेगी मिर्ची ढूंढते रहोगे फिरते हल्दी. अब उनको जब पता चला तो वो क्या, हाउ दे आर टेकिंग. मैं गुजरात गया तो मैंने देखा वहाँ गुजरात में कंपनी जो है हल्दी के कैप्सूल बना रही है. जैसे हमारे यहाँ एमोक्सिलिन के कैप्सूल आते हैं, ऐसे हल्दी के कैप्सूल बना. मैंने बोला ये कहाँ? बोला जी एक्सपोर्ट होते हैं. बोला किधर? बोला वो लोग अब शाम को खाने के बाद 2 कैप्सूल खाते हैं हल्दी के. अब उन्होंने हल्दी को एज अ मेडिसिन, अब वो क्या खाते हैं? कैप्सूल्स. ठीक है, या टैबलेट्स बना लो तो टैबलेट्स मिलेंगी आपको हल्दी की, या आप कैप्सूल्स हो तो वो कैप्सूल देखे मैंने वहाँ पर गुजरात में. कंपनी एक बड़ी कंपनी थी, वो कैप्सूल बनाती थी हल्दी की. खुला हल्दी आता था फार्म से, और बस उसके वो पाउडर करके उसके बाद कैप्सूल बनते हैं, और कैप्सूल के डब्बे पैक होके और वहाँ चले जाते हैं. समझे? अब वहाँ कंपनी में जाके पता चलता है कि भाई मार्केटिंग कैसे करते हैं ये लोग आजकल. कैसे अमेरिकन कंपनी अपना नाम देती है, अपना प्रोडक्ट बोलेगी कि मेरा प्रोडक्ट बनना चाहिए और इस नाम से अप्रूव्ड होना चाहिए, इंडिया में ही बनता है, इंडिया में नहीं बिकेगा वो. अमेरिका की कंपनी यहाँ बोलेगी कि मुझे यहीं से चाहिए, मुझे पैकेजिंग करके. क्यों? कि इंडिया में लेबर और कॉस्ट ऑफ प्लांट लगाने सस्ता है, लेबर कॉस्ट सस्ता है. यही काम अगर वो हल्दी ले गए वहाँ, तो वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होगी, सब कुछ होगा, और वो ज़्यादा कॉस्ट बनेगा उसका. उनको कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं कि अब आपने जहाँ पर मटेरियल निकलता है वहीं पर आप दे दो अपना नाम, अपना प्रोडक्ट आपका रेडी होगा. अगर हम इंडिया की बात करें, जितना महंगा दिल्ली में होगा, हमें कोई बड़ा स्टोर लेना होगा, और अगर हमें स्टोरेज जो है हम आउटसाइड द सिटी लेते हैं, या हम वहीं पर लेंगे, कश्मीर में ही सारा काम करवाएंगे, उसके बाद हम वहाँ कर लेंगे. तो इसलिए जो आपका, जब आप एप्पल का या किसी का चीज़ें का जो है, इसको हम बोलते हैं लो वैल्यू एडिशन एंड हाई वैल्यू एडिशन. ठीक है, लो वैल्यू एडिशन में आपने, जैसे लेवेंडर का है, आप लेवेंडर हार्वेस्ट करते हो, मोस्टली हम 15 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ देते हैं, उसके ऊपर जो है वो हार्वेस्ट कर देते हैं. ठीक है, या 20 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, उसके ऊपर हार्वेस्ट कर देंगे. अगर आप हार्वेस्टिंग करते हो उसके बाद आप ऐसे ही दे देते हो, तो आप लो वैल्यू एडिशन कर रहे हो, कि सिर्फ इतना कर रहे हो आप कि आप हार्वेस्ट कर रहे हो. लेकिन अगर आप उसके बाद फ्लावर बड्स निकालते हो और लीव्स अलग करते हो, देन यू आर एडवांस टू डैट. तो आप थोड़ी बहुत एडवांस वैल्यू एडिशन कर रहे हो. लेकिन उसके बाद अगर आप फ्लावर्स को पैकेजिंग करके बेच देते हो, और वो भी एक वैल्यू एडिशन है. अगर उससे भी ज़्यादा आप चले जाते हो हाई वैल्यू एडिशन पे, जहाँ आप ऑयल निकाल लेते हो. ठीक है, और उससे ज़्यादा हाई वैल्यू एडिशन हुआ किसी भी प्लांट का जो है फाइटोकेमिकल जो है आपने निकाल दिया,
ठीक है, तो वो आपको, और एक तो बल्क आपका कम हो जाएगा, दूसरा आपका जो है वैल्यू ऐड होगी, ठीक है ना। आप वो चीज़ें कर सकते हो, जैसे एप्पल का जैम हम बोलते हैं, एप्पल का चिप्स बोलते हैं, दूसरी चीज़ें हैं, दीज आर द वैल्यू एडिशंस। इसी तरह से मेडिसिनल प्लांट में भी वैल्यू एडिशंस जो हैं कल्टीवेशन से लेकर, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज आल्सो ए वैल्यू एडिशन। अब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स वी आर ग्रोइंग द प्रोडक्ट, आप बोलोगे द आवर प्रोडक्ट इज ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। Under good agriculture practices, we generally don't recommend the fertilizers or any other pesticides. So when you adopt those good agriculture practices, if you put the label on that, you have to get the certificate from VSMPP से, और वहाँ से आपको सर्टिफाइड आएगा your product is a organic product, this is a value addition. Any product can, if it is a this organic, your value will be added to that product. जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल आपको दी, दाल, आपको छोले की दाल भी और यहाँ पर मिल रही है। दिल्ली में आप जाओ बड़ी सिटीज़ में, वहाँ आपको 2 वेजिटेबल ये शॉप्स मिलेंगी। एक ने बोर्ड लगाया है हमारा प्रोडक्ट जो है वो आपका ऑर्गेनिक है एंड नेचुरल फार्मिंग से, और एक आता है जी नॉर्मल फार्मिंग से। वहाँ बैंगन 50 रुपये किलो है, यहाँ बैंगन 250 रुपये किलो है, ठीक है। तो रेट उसने वैल्यू एडिशन कैसे किया? बाय अडॉप्टिंग द गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सिंपल, कोई चीज़ नहीं बनाई कि बैंगन का हमने भरता बनाना शुरू कर दिया या बैंगन की चिप्स बना दी, नहीं, बैंगन ही बिक रहा है, लेकिन गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने से उसका वैल्यू जो है वो हाई हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मेडिसिनल इसमें कर सकते हो। इतने तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, होना चाहिए कि भाई सिर्फ खाना खाया 7 दिन तो ट्रेनिंग हो गई, सर्टिफिकेट मिली, करेंगी क्या उसका करेंगे क्या आगे? ये इसकी ग्लोबल मार्केट डिमांड है कि भाई कितना डिमांड इज इंक्रीजिंग। द सेम you can see the trend is increasing, that we are expecting that 2050 the demand will be very much high, 5 trillion. Okay, so Indian medicinal plants का ये आपका थोड़ा सा डाटा है। You can see this 56,000 metric tons जो है ये था about, that increased in 2015-16 to 22-23 में 134,000, ठीक है। You can see this export is also increasing with the steep graph is showing the steep as compared to the import, as compared to import. These are the import and export data of these medicinal plants. So you can see potential of Indian market sector. Isabgol in Rajasthan, Sinna in Tamil Nadu, Atis and Kut in high altitude areas. Hello, 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 hello. कोई बात नहीं, मेरा लेक्चर है, मैं देखता हूँ उसके बाद में, एक क्लास है मेरी, मैं क्लास के बाद। मुझे सिर्फ इतना चले ना ये कि भाई किसका है बायर, ये आपने कैपेक्स में ये आपने कैपेक्स में लाया है या आपने HADP में लाया है, वो देखना है। तो HADP में इश्तियाक साहब को देखेंगे, इश्तियाक साहब से पूछेंगे क्या ये कौन सा प्रोडक्ट है। HADP में ऐसा है कि भाई जितना रिलीज होता है उतना वो कर देते हैं, अपने पास तो रखता नहीं कोई पैसा, लेकिन देखेंगे ये प्रोडक्ट में ये क्यों रुका है, क्या प्रॉब्लम है, उनसे पूछेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसबगुल में राजस्थान नंबर 1 है, ठीक है। जो इसबगुल में आपको बोल रहा था प्लांटेगो कोई तूफान, ये तो वैरायटीज़ अच्छी वैरायटीज़ हैं जहाँ पर आपको हस्क और लेंथ ऑफ द पेडेंकल जो है वो ज़्यादा है। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड गुल एंड लॉकुड गुल, कश्मीरी में बोलते हैं उसको लॉकुड गुल एंड बोर्ड गुल। प्लांटेगो मेजर एंड प्लांटेगो माइनर यहाँ पर वाइल्ड होता है हमारे पास। हाँ, ओवेटा शेप ऑफ द लीफ, मेजर भी है एंड द माइनर भी है, ठीक है। लेंसुलेट्स लीव्स होती है इसकी, माइनर की, ओवेटा एंड लेंसुलेट।
तो ये जो आप देखते हो ना हमारे अमन बेरन पेट आसन दुनिया वाइल्ड एनिमल्स आसन दुनिया ये हिसाब ये सेगमेंटेशन ऑफ इंडियन हर्बल मार्केट है, हर्बल टीज, फंक्शनल फूड्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड एक्सट्रैक्ट्स, फाइटोकेमिकल, हर्बल कॉस्मेटिक्स। कहाँ कहाँ आपका जो है ये आप हाथ मार सकते हैं। वेटरनरी हर्बल प्रोडक्ट्स, एरोमेटिक ऑयल्स, एरोमा थेरापी, ठीक है। कलनरी हर्ब्स में कल एक वीडियो देख रहा था, एक आप में से किसी ने सुना है कडलिंग थेरापी? कडलिंग नहीं देखिए कहाँ कडलिंग थेरापी इज दैट टाइप ऑफ द थेरापी, मतलब ये बड़े शहरों में पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वहाँ क्या करती हैं कि जैसे लड़की ने स्पा खोलते हैं ना, वैसे ही एक एग्रीमेंट होता है कि लड़की जो है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना पेशेंट, उनके लिए कडलिंग थेरापी है। आप गूगल करके देख लेना कडलिंग थेरापी का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें टाइम लगेगा भी, ठीक है ना। हमारे यहाँ लड़की खोलेगी नहीं, बोलेगी मुझे सोसाइटी क्या बोलेगी, ठीक है। तो वो लोग तो परवाह नहीं मारते ना कि वहाँ पर वो बड़े ऊपर गए चले गए। तो कडलिंग थेरापी जो है वो आपको 50,000 रुपया देने के लिए आप तैयार हो, लाख रुपया, क्योंकि आप अगर डिप्रेशन में गया है कोई, तो उसको मेडिसिन कुछ नहीं करती। मेडिसिन एक टाइम बीइंग आपको सिर्फ कहेगी कि आप जो है सोने की दवाई देगी, आपको अफीम खिला के सुला देंगे। दिस इज़ द वे कि भाई आप जितना आराम करोगे इतना आप सोचोगे कम, ठीक है। तो ये नेचुरल वेज हैं, उसको कडलिंग थेरापी देख रहा था मैं। तो ये मार्केट, ये इसका चैनल है, मार्केटिंग चैनल जो है मेडिसिनल प्लांट की, कि लोकल कलेक्टर एट विलेज लेवल एंड देन लोकल ट्रेडर कवरिंग द स्मॉल ट्रेडर्स, मिडलमैन एंड देन होलसेल एंड रीजनल ट्रेडर्स, then the retailer and industries, and then to the consumer, reach to the, this is the market channel of medicinal plants. भूख तो नहीं लगी? यहाँ पर आपको बहुत सारों ने बोला होगा कि this is the area where you have to think, because we are selling the 60% as a crude, not as a finished products. So when crude to finished के लिए जाने का, that is your enterprise. वहाँ पर आप हाथ मार सकते हैं कि अगर क्रूड जा रहा है तो हम क्यों नहीं इसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें, 60% को फिनिश में चले जाएं, क्रूड हमारा 10% होना चाहिए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये है एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड द ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज इज फाइटोफार्मास्यूटिकल, मेडिसिनल बोटेनिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिकल्स। ये है जो आपको, अगर ग्लोबल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखोगे तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ वेयर यू कैन हैव द अपॉर्चुनिटीज़ टू एंटर इनटू द ग्लोबल मार्केट, एंड दीज आर द थिंग्स वेयर यू कैन एंटर इनटू द agri entrepreneurs. Sir, in case of medicinal plant sector, how can we differentiate that a farmer is small or marginal farmer? Like in case of agriculture, it is based on land holding. It's a land holding. It is in case of the medicinal plants also is land holding. Because sir, yesterday sir was saying that if you will be having that to just polyhouses and you can earn like 5 lakh in that. So on that basis, our land holding. If we talk about the nursery, yes. If we talk about the nursery, this is not the case with the production. The problem with the medicinal plant is that मैं आपको तो नहीं जानना चाहता कि भाई आपको मैं मूवी का एक ही चेहरा दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ अ गुड थिंग। दूसरी तरफ जब हम मेडिसिनल प्लांट की तरफ हम जाते हैं तो दो चीज़ों का जो है वो काफ़ी मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि भाई जब तक आपका कंपटीशन किसके साथ है कश्मीर में, आप एज ए फार्मर you are having the competition with horticulture crop. आपका competition apple के साथ है. If people are earning more in apple, why they will go for the medicinal plants? You have to bring this at par with the apple, then the people will go in a blind way, they can go for the cultivation. One thing is that. Second problem with these medicinal plant is that they are not, first problem is that they are not coming to that level. आपके एप्पल की लेवल पे, आपके अखरोट की लेवल पे, आपके ड्राई फ्रूट की लेवल पे नहीं आ रहा है, नंबर वन। नंबर सेकंड प्रॉब्लम इज दैट कि गेस्टेशन पीरियड इज वेरी मच
लार्ज। गेस्टेशन पीरियड का होता है कि क्रॉप रोटेशन, या आप बोल दो कि जो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है वो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे टेम्परेट क्रॉप्स में 3 इयर्स, मोस्टली 3rd ईयर में हार्वेस्ट होता है। आप चाहे कुट करो, चाहे आप वलरेना जटामंसी करो, चाहे आप एकोनेटम कीजिए, आप जितने भी मेडिसिन प्लांट जहाँ पर रूट्स यूज होते हैं यहाँ पर हमारे, दे आर हार्वेस्टेड आफ्टर 3 इयर्स। अब हम उसकी जब हम पैकेज एंड प्रैक्टिस देते हैं कि ये 1 हेक्टेयर में इतना आपको निकलेगा, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स फार्मर विल नॉट वेट अनलेस एंड अनटिल ही विल गेट सम hefty सम अमाउंट। जब उसको पैसा मिलेगा देन। सेकंड, इसको छोड़िए आप कि हम फर्स्ट स्टेज में क्या बोल रहे हैं आपको, कि हम बोलते हैं कि यू कैन नॉट गो फॉर द प्राइम लैंड में आप मत जाइए, ठीक है ना। यू कैन नॉट गो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दीज मेडिसिन प्लांट्स ऑन अ प्राइम लैंड, यू कैन गो फॉर द कल्टिवेशन विच द लैंड विच आर नॉट suitable फॉर द एप्पल, नॉट suitable फॉर एनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल दिस बेनामा एरिया, ये जब लोगों का बहुत सारा कंडी एरिया है जहाँ पर लोगों को नहीं होता है कुछ, दे कैन गो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दिस क्रॉप, these crops, okay, so that this land can also be utilized for some purpose and he or she will get something from this land also. So that is why we are asking you go for the lavender cultivation, you can go for this. Somebody was yesterday asking that you can go for the intercropping, but how we will recommend the people to go for the intercropping with the apple? No, not at all, because we are spraying the 16 sprays to apple. Ultimately तो वो इन पे भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो हाउ आपका जो जितना भी मेडिसिनल प्लांट का एक्सपोर्ट मार्केट है वो टेस्ट के बिना नहीं लेंगे। दे आर सीइंग द थिंग्स कि आपका पास पेस्टिसाइड लोड कितना है, आपके पास ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, वहीं से तो रेट आपका डाउन हो जाएगा, वहीं से आपका कंसाइनमेंट वापस आ जाएगा। कोई कंसाइनमेंट अभी इंडिया की वापस आई थी किसी एग्रीकल्चर क्रॉप की, मैंगो की आई थी, हैं मैंगो की आई थी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पेस्टिसाइड, इरेडिएशन डोज उसमें, हाँ व्हाटएवर इट इज। तो आपका तो मार्केट खत्म, ठीक है। तो इसलिए हम रिकमेंड नहीं कर सकते तब तक जब तक आपका एप्पल ऑर्गेनिक नहीं हो जाता। अगर आपका एप्पल ऑर्गेनिक होता देन you can use that strip of the land for cultivation of these aromatic and medicinal plants, otherwise we cannot. सर जैसे हमें एप्पल हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स में हमारा इन्वेस्टमेंट भी जाता है पर कनाल, हमें ट्रेलस सिस्टम लगाना होता है या बाकी चीज़ें जो ड्रिप इरिगेशन किट लगाना होता है, तो उसका भी एक फिक्स्ड मतलब है कैपिटल आपको हैवी देना होता है और वो बेयरिंग पे 2 साल बाद आता है। सर मेडिसिनल प्लांट्स में मुझे नहीं लगता हमें उतना इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टिल लोग क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? मैंने आपको दोनों चीज़ें बोली कि लोग ग्रो इसलिए नहीं करते हैं। दो तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ये था। एक तो ये था कि फ्लक्चुएशन इन मार्केट अवेलेबिलिटी एंड द फ्लक्चुएशन इन मार्केट। एक बार मुझे जिस दिन मैंने बेचना चाहा कि मैं लेमन बाम बेचूंगा, तो मुझे बोला बंदे ने कि भाई आपका तो लेमन बाम में 1100 रुपये ले लूँगा, 1400 रुपये में भी लूँगा और 2400 रुपये में भी लूँगा, मुझे दे दो सिर्फ। और जब मैंने लेमन बाम की कल्टीवेशन शुरू की, नेक्स्ट ईयर मैंने देखा कि अब वो मानता ही नहीं, वो 1000 रुपये में भी मानता, 800 रुपये में। दैट इज अ फ्लक्चुएशन इन मार्केट, फ्लक्चुएट होता है। आपको एग्रीकल्चर क्रॉप में ऐसा नहीं है। एप्पल आपका एश्योर्ड मार्केट है, फ्लक्चुएट कम करता है। कभी एप्पल आपका जो है 1100 रुपये में पेटी जाएगा, कभी 900 रुपये में जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन इस प्रोडक्ट में आपको ऊपर ले जाएगा 3500, नीचे आएगा 200, इतना बड़ा फ्लक्चुएशन है इसमें। फ्लक्चुएशन इज वो गैप जो है वो बहुत बड़ा है। So there can be government interventions as well, like हाँ, तभी हम बोल रहे थे कि HADP में जो है कि आपको यहाँ पर मंडीज होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर MSP पे बात करते हैं हम। जैसे एग्रीकल्चर में अभी अब तक हम MSP पे नहीं आएंगे, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो MSP अगर लग जाए और मंडीज हूँ, स्मॉल मंडीज हूँ जहाँ पर आपका फार्मर जो है वो बेच दे, जिसको कि ढूंढना ना पड़े कि मैं कहाँ बेचूँ, जिसको पता हो कि भाई यहाँ कुट बिकता है, ये लेते हैं। एक मंडी और दूसरा आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस,
मिनिमम MSP जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो चीज़ अगर जब तक फिक्स नहीं होती है, यू कैन नॉट। Medicinal plant based enterprises, 6 P's. Either you can go for the production, cultivation and sourcing, processing, product development, packaging, promotion, marketing and branding, and the policy. These are the 6 P's where the enterprise is working. ये ग्लोबल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज मैंने पहले डिस्कस की हैं आपको। ये प्रोसेसिंग के लो लेवल वैल्यू एडिशन एंड हाई लेवल वैल्यू एडिशन मैंने आपको बोल दिए। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, सर्टिफाइड गुड क्वालिटी सीड्स, ग्रेडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्लांट पार्ट्स। आप ग्रेडिंग करते हो कभी मीडियम साइज लीफ, बिगर साइज लीफ एंड स्मॉलर साइज लीफ, ठीक है। दैट्स द ग्रेडिंग, जिसमें एप्पल की तरह हम ग्रेडिंग करते हैं, बड़े वाला, छोटे वाला, मीडियम वाला। ऑल दैट हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, हर्बल कॉस्मेटिक्स, हर्बल जूस, हर्बल ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, शुगर फ्री चॉकलेट्स। कल्टीवेशन सिनेरियो जो है, दिस इज दिस कल्टीवेशन सिनेरियो इन इंडिया। I will go for this. This is the acceptable growth. These are the some of the medicinal plants in high trade, more than 100 tons per year. Picoreza, curva, aconitum, viola, berberis, Virginia. You will find these are the plants. These are the Himalayan plants. Valeriana, jatamansi, aconitum, rhododendron. Okay, Texas. Rhododendron. These are the also these Himalayan plants. Rhododendron. इसका प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो दिस इज जूस, हिमाचल से लिया है ये फ्लावर जूस इसका। ये है सिबकथॉन, टक 3 करके इसका आता है एक प्रोडक्ट, टक 3 सिबकथॉन जूस। ये आपको लद्दाख में, हाँ। These are the benefits and you can see the fruits. Layberry, Sivathorn layberry. The most talked about is Suercia Chiriata. ये यहाँ पर भी होता है हमारे। This is the Suercia Chiriata nursery and plants. These are grown under the, we are having one project that is an All India Coordinated Research Project on Medicine and Aromatic Plants. I am looking after that project. और उसके अंडर जो है हम Valeriana jatamansi and we are having the Suercia Chiriata and Virginia ciliata. These 3 crops we are having been provided by this center. This is the Valeriana jatamansi nursery. You can have this nursery. इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ क्रॉप्स का आप सीड जो है वो आप पैकेज कर दोगे, लेकिन कुछ सीड्स की वायबिलिटी बहुत कम होती है। यू कैन नॉट स्टोर फॉर दोज सीड्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आप अगर पढ़ोगे सम ऑफ द सीड्स आर ऑर्थोडॉक्स सीड्स, सम आर द रिकंसिडेंट सीड्स एंड सम आर द मीडियम type of the seeds which you can store up to this. See, the thing is that how much moisture content you can decrease while storing. When you want to store some seeds, you have to decrease the moisture content. So okay, you have to when you are decreasing the moisture content means you are restricting the metabolic activity of the seed. When you are restricting the metabolic activity, you can store the seeds for a longer period of time. But some of the seeds, in case of the Valeriana jatamansi, we have seen that the viability is very much low. आपको उसी वक्त हार्वेस्ट करना है सीड, यू कैन गो फॉर द ऑन दिस इन द सेम मंथ यू कैन गो फॉर द सोइंग ऑफ द सीड्स. इफ यू स्टोर दोज सीड्स you will see you will lose the viability of the seeds. The seeds viability is lost. So this you can see the Valeriana jatamansi nursery. You can go for this. distillation होती है ना, फिर ऑयल बन के चाइना एक्सपोर्ट Valeriana यहाँ पे सर कुछ फार्मर्स करते हैं। तो ये हम नर्सरी की बात कर रहे हैं. You can go for this. जैसे हम हाक थल छासन तिते पे हिक्यू तो यम कड़ित पत हिक्यू तो लगित हम पॉली बैगन मज पत हिक्यू तो पॉली बैग्स
Quinit. Akak plant like to polybag and Sir, and in case of these medicinal plants, like in agriculture, we have rabi crops, kharif crops, and zaid Mhm. crops. Means there is a particular season in which we Season, can grow the yes, plants. yes, yes. In case of medicinal plants, is there any particular season? Yeah, or there is a season for, if you are going for this, for example, if I will talk those species on which we have worked. For example, the Valeriana jatamansi, we have this, we have seen that in the month of March, April, the seeds are ready in the month of April, May. In February, March, you will see the flowering in the plants, and in April, May, these seeds are ready. Some parts you can see the April, and some higher altitudes you can see in the May, the seeds are ready to harvest. I was asking you that the seeds are having the viability low. In the month of June, you can go for the sowing of the seeds. Okay, either May or in the month of June, you can go for the sowing of the seeds. By the end of the August, September, October, you will see this. You will be having the seedling, or you can keep those in polybags or somewhere in the open during the winter months also. And from January, February, you can go for the selling of these plant materials. Okay, this is the one way. Second way of this propagation method is through which one? That is the cuttings. We have developed a protocol on the cuttings of taking the cutting of this leaf along with the leaf, and we have given the NAA treatment to those plants, and we have seen the rooting is very much good. That is the vegetative propagation, through the vegetative propagation. Or the third thing is that you can go for the, in which, Ikra? Rhizomes also? Yes, sir. Rhizomes also, you can go for the cutting of the rhizomes into the pieces. You will see how these plants behave. Like that, it will give you the bunch of plants from one rhizomes. You can go for the singling of those plants. You will find if in 1 year you will plant single plant, another year you will find some 30 to 40 plants in a single bunch. You can create those. Okay, so this is the easy method. In case of the vegetative propagation, you don't go for the any treatment to those cuttings. In case of these rhizome cuttings, you don't need to go for the treatment. Another way, in case of this put, we are having this September, October, the seeds are ready. Okay, the seeds are ready in the October, and the second method of cultivation or propagation method of the put is through the rhizome cuttings also. जैसे आलू की आप आइस को देख के काट कर करा सकते हो, वैसे ही आपको कुट की आपको राइजोम मिलेगा. आप एक आई भी उसमें रख लेते हो, एक ही राइजोम को 5-10 टुकड़ों में काट लो और उसको सो करो, यू विल फाइंड द प्लांट. ये NAA ट्रीटमेंट क्या है सर? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या IBA यूज़ करते हैं हम, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड. ठीक है, तो ये आपकी जो सीड्स की, अगर सीड में कोई भी किस्म की सीड्स में नहीं, लेकिन ये इसमें कटिंग्स में आपको रूटिंग हार्मोन चाहिए. तो IBA जो है वो हम GA3 वगैरह जो है वो हम सीड को देते हैं. GA3 जिबरलिक एसिड, ठीक है, वो सीड्स के लिए देते हैं, ताकि जिबरलिक एसिड जो है वो आपका जितना भी सीड है वो जिबरलिन उसमें आपकी एनहांसमेंट होना चाहिए, और एब्सिसिक एसिड आपका जो है वो डिक्रीज होना चाहिए. Then the growth will start. The growth of the embryo starts. The embryo is in a dormant stage because the abscisic acid is, the concentration of abscisic acid is more as compared to the GA3. So we give the artificial GA3 to increase the concentration of GA3 and activate the embryo for the growth. This you will see, this is the plant of this Valeriana jatamansi. This is the Piculiza curva, kutki. No, this is not kut. This one is Piculiza curva, kutki. This is kutki field. This is Angelica glauca, Aconitum heterophyllum, Athis, Pathis. This is flower color variation in Athis. Normal two tubers, multiple tubers. This is the one way where you can identify this aconitum, that this is having the two tubers.
गिलोय, मिक्यून, एक्सोटिक्स सिटीविया, ये मीठा प्लांट है जो चीनी के बदले यूज होता है, आप पत्ते यूज कर सकते हैं। स्टीविया, स्टीविया आप देखोगे पैकेट्स में मिलता है, आप स्टीविया। इग्निशिया, इसकी चाय बनती है बहुत सारी, बाकी यूज होता है काफ़ी। इग्निशिया हमारे यहाँ पर भी है फील्ड में। You can see this is the Ignitia flower. Aromatic plants में आपको जो है wild marigold, yes, Vegetus, lavender, okay. Then we are having this lavender-based business model, lavender cream, lavender oil, lavender mist. These are the innovations which have been done, okay. These are the innovative ways to how to sell the lavender on a high price by selling the flower buds only. You can go for the extraction of the oil, you can go for the making the lavender oil and then lavender cream and lavender mist. This is Rosa damascena, rose water. This one is rose water, glucan, rose petals, rosemary. These are the products from the rosemary. You have you visited the rosemary park? Yeah, हाँ? ये कोऑर्डिनेटर कहाँ है? चलो वो ले जाएंगे आपको। तो ये these are the products from the rosemary oil, rosemary mist. The problem with the rosemary is that it is having the oil content is very much low. How much oil content is in lavender and how much oil content in rosemary? Ikra. The lavender is 0.9 to 1% and this one is 0.01, 0.02%. Very much less in case of rosemary. Oil content. Lavender में कितना है सर? 0.1%. You can see the 1%. इसमें 0.0 0.01%, 0.02%. Very much less. This is the chamomile. Chamomile tea you have, Matricaria chamomile. Okay. Calming tea. These are the incentives for the cultivation. You can see the subsidy, 30% subsidy, 50% subsidy and 75% subsidy. This use system of medicines आपको देगा। ये NMPB नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड का है और ये आपको कितनी परसेंट जो है अप टू 30% आपको कौन से वाले प्लांट्स हैं एंड सब्सिडी अप टू 50% जो है वो टोटल 27 स्पीसीज एंड टोटल 13 स्पीसीज यहाँ पर आपको 75% सब्सिडी मिलती है। तो जो लास्ट स्लाइड में था वो सर कैरेट ग्रास था या कुछ वैसे? नहीं, ये ग्रास वो अलग है जिसको हम कश्मीर में फाग ग्रास बोलते हैं। नहीं, वो नहीं है ये कैमोमाइल है, जैसा क्रॉप है। ये कैमोमाइल है जिसको आप डालोगे आपकी टांग जो है ना ठंडी हो जाएगी, वहीं पर आपको बहुत ठंडी जल लगेगी आपको। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं कुछ क्रॉप्स का दिया हुआ है कि आपका अगर चिरियाता लगाते हो आप तो इकोनॉमिक यील्ड इतना है एंड प्राइस इन केजीज, ये प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है एंड सब्सिडी जो है इसमें 75%, 50% एंड 30% पे आपको सब्सिडी। सो विद दिस I have finished my presentation. Any questions or any we can share the knowledge between you and me. I will get something from you people. If you want to talk about these medicinal plants, you can say something about the medicinal plant. What you think about that after completing this training program? Are you interested in something related to the plant? You must. Okay. Think big. कि आप कहाँ से छोटा सा स्टार्ट करोगे, देन यू विल नॉट, आप नहीं रुकोगे फिर। समझे बात आप? तो हमारा मकसद भी यही है कि आप लोग जो है इस बिज़नेस के साथ किसी न किसी एंगल से
जुड़ जाए. And sir, as far as I think, medicinal plant sector should be multidisciplinary, sir. Like we have other faculties in SUKAS, fisheries faculty. If I will link this medicinal plant sector with that of aquaculture, we have different kinds of diseases in fishes. Like we have bacterial infections and all, and we use synthetic those बिल्कुल drugs. definitely. जैसे veterinary हम Yes, बोलते sir. हैं. Oxytetracycline, metaprim, and other drugs. But there is a problem that there is antimicrobial resistance in the fishes. If we will go for this exploration of the medicinal plants. like there is a Definitely. company Cattle Remedies, sir. They are making some products out of these medicinal plants like that of sir appetite stimulants for the cattle and all. Yes. So similarly, we can explore this sector in the aquaculture domain as well, sir. There is a potential, and I am looking for that, sir. After completing this, I will see if there is some. You can relate in which you might have the degree in some other subjects, but how you linked with these medicinal plants to your profession. Yes, sir. There is a concept of that Okay, antimicrobial the resistance, beauty sir. people So- will link the product with the beauty thing. The nutraceutical will think about the how to introduce this into the nutraceutical. The natural people will take it as a natural way. Okay, the herbal products you can link it with the many ways, whereas you link the other professions with some other professions. There is a linkage because agriculture is it's a vast subject, and you can link these things in your day to day. Okay, so we hope best for you people to start something venture. These Benhama people and Gandarabal people, you can think about you take this opportunity that you are having these several these visitors, or you can say the tourists are visiting your places. How you can link with this these your herbal products into this. No. So thank you all. Thank you, sir.